So guys, this is a doubt clearing class for linear equation in one variable, chapter 2 to chapter 2.1 to 2.4. We will be completing all the doubts. So over to you, Rahul. Doubt 2.1. Any doubts you have? Yes, sir. Question number. Exercise 2. Question number 7. 2.1, question number 7. No, sir. 2.2, question number 7. 2.1. Any doubts? 2.1. No, sir. Jagannath, 2.1. Any doubt? Yes, बोलो जल्दी फटाफट. sir. 12 number. Question number 12. X by 3 plus 1, 7 by 15. Huh? Solve the following equation. So exercise 2.1, question number 12. Question number 12 is solve for x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. I will tell you two different things here, two ways to solve it. First, see, this is a fraction, this is a natural number. So you have to take, you can take, that's not mandatory, you can take this and this, the denominator of this and this, take the LCM of these two. So the LCM will be 3, x will be x, and this will become 1 into 3, 3. The other side 7 by 15 is as such. Next, what you will do, 3 is divided here. You can take 3 on this side, it can get multiplied. So x plus 3 is equal to 7 by 15 into 3. Now 3 and 15. You can write 7 by 5. X is equal to 7 by 5 minus 3. Then you can again take LCM. 5 3s are 15. 7 minus 3 was added here. 3 went to this side, so it became minus 3. Huh? So 7 by 5, it became 7 minus 15. Minus 8 by 5 is the answer. This is one way of doing it. The other way of doing it is, you keep x by 3 on this side, take the constant 1 on the other side, put minus 1 because it is added here. When it goes to this side, it becomes minus. Next, x by 3 is equal to, this will become 7 minus 15 because LCM you have to take 7 minus 15 by 15. Now, you can say 7 minus 15 by 15 is equal to minus 8 by 15. 3 is divided here. When 3 goes to the other side, it becomes multiplied by the fraction 5 minus 8 by 5. Both are correct. Okay? Both the process you can apply, both are correct. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Apart from this, I will give you one more shortcut. We took 3 to this side, isn't it? In this case, we took it to this side. This is entirely one single term. This is entirely one single term, isn't it? Because we know in algebra, terms are separated by plus or minus. Suppose x plus y is given, these are two different terms. But x into y is given, this is a single term. Similarly, x plus y by z it is given, it is a single term. Okay. So it is one single term completely. This is one single term completely. पूरा टोटल पे 3 डिवाइडेड है, पूरा टोटल पे 15 डिवाइडेड है. उसी तरह अगर पूरे टोटल पे कुछ मल्टीप्लाइड होगा, मान लो x प्लस 3 होता और टोटल पे 5 मल्टीप्लाइड होता, इधर 7 प्लस x टोटल पे 5 मल्टीप्लाइड होता है ना. तब भी इस तरह का केसेस में जहां पे टोटल पे कुछ डिवाइडेड है, टोटल पे कुछ मल्टीप्लाइड है, ये दोनों केसेस में मैं डायरेक्टली यहां से रिड्यूस कर सकता था. 3 5 जा 15, मेरे को उसको दूसरे साइड लेके जाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हो ही वही रहा है ना. अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर क्या बच रहा है, 5 ही बच रहा है ना नीचे डिनोमिनेटर में. तो आई कैन डायरेक्टली डिडक्ट इट फ्रॉम हियर. सिमिलरली आई कैन डायरेक्टली कट फ्रॉम हियर.
These are few shortcuts that you can take. बार बार इसको इधर चेंज करना, इसको उधर चेंज करना, that you should do after you are good and thorough with this. You can apply these shortcuts. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Ayush, you have some question, please. Yes, sir. Question, you had raised hand. You have any question? Sir, no, sir. I have doubts, sir, from sir. These, sir, so that you have sir, done the two process, sir, that is. Both can be adopted. Any which way you can take. See, we know the x by 3 plus 1 is equal to 7 by 5 was there. Our Yes, sir. primary rule is what? Take constant on one side, variable on one side. So keep following that rule. X by 3, this is constant, we'll take it to this side. 7 by 5 minus 1. Sir, 7 by 15. 7 by 15 minus 1. Now, so you solve this part. Minus 8 by 15. It is x by 3. Again, x is 3 is divided here. Principle is same. Take the constant on this side. Yes, So it is sir. divided, it goes to that side, becomes multiplied by it. Multiply. Yes, sir. So 3. I gave you few examples. Ki this way also you can do it. Okay, sir. Okay, sir. Right. Okay, sir. Any more question for 2.1? Any No, more sir. question? No. No, sir. Clear? Clear. 2.2. 2.2. Rahul, 2.2. Yes, sir. 2.2, question number 7. Question 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8. Sum of question number is 7, na? Sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. Find the multiples. I'll do one simple thing to make you understand this concept. यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में, यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो किस पे डिपेंडेंट है मेनली? अभी ये तो पता है कि 8 का टेबल है. अब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है यहाँ क्या हम लोग डालने वाले हैं, इस जगह पे हम लोग क्या डालने वाले हैं उस पे डिपेंडेंट. अगर यहाँ पे मैं 5 डालूंगा तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 10 डालूंगा तो ये 80 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 20 डालूंगा तो ये 160 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 डालूंगा तो ये 16 हो जाएगा. Isn't it? तो ये एंटायरली इस पार्ट पे डिपेंडेंट है. मतलब इस 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को अगर मैं एक अल्जेब्रिक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करूं कि भाई सर इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए x का वैल्यू, आपको 8 का मल्टीपल आ जाएगा, तो ये होगा 8x. Yes, sir. 8x will be the general formula. यहाँ पे 8x इज इक्वल टू, मान लो y जो है नंबर आने वाला है वो इस पे डिपेंडेंट है, नहीं ये x पे जो भी डालेंगे उस पे ये आंसर डिपेंड करेगा. सो द जनरल फॉर्मूला इज 8x. आपको कोई भी मल्टीपल निकालना है तो 8x. अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं x का स्टार्टिंग कर रहा हूं 5 से. मेरे साथ समझना बात को. मैं x को स्टार्ट कर रहा हूं 5 से, तो 8 into 5 एक मल्टीपल आएगा 40. अब इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? उसके बाद वाला. तो उसके बाद वाला इसी सीक्वेंस में क्या मल्टीपल आएगा? 8 into 6 48. उसके Yes, बाद sir. वाला 8 into 7 56. इतना दूर समझ में आया? Yes, sir. इस x के Yes. वैल्यू, इस x के वैल्यू पे अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स भी डिपेंडेंट है, क्योंकि इस x के वैल्यू पे पहला निकलेगा, उसके बाद ये दूसरा निकलेगा और उसके बाद ये तीसरा निकलेगा. अब 8x आया था पहला, फर्स्ट मल्टीपल जो हमारा काम का है.
8x आया था अपना पहला मल्टीपल, इस केस में 40 आया था जो हमारा काम का था। उसके बाद वाला मल्टीपल उससे कितना डिफरेंस में है, 48 में है, मतलब इसमें मैं एक और 8 अगर ऐड करूंगा तो 48 मिलता है। और उसके बाद वाला Yes, sir. 16 के डिफरेंस में, ओरिजिनल नंबर से, ये ओरिजिनल Yes. नंबर था ना, ओरिजिनल नंबर से 16 के डिफरेंस में कितना आया, 56। मतलब ये 40 + 8 आया, ये 40 + 16 आया। तो अगर पहला मल्टीपल 8x निकलता है तो दूसरा मल्टीपल 8x + 8 निकलेगा, तीसरा कंसेक्यूटिव मल्टीपल 8x + 16 निकलेगा। इतना दूर तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन बोल रहा था द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8. तो इफ वी टेक लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 is equal to 8x, so the next two multiples will be 8x plus 8 and 8x plus 16. So these are the three multiples. Now the question is sum of these three multiples is 888. So according to question, 8x plus 8x plus 8 plus 8x plus 16 is equal to 888. इतना दूर तक क्लियर है क्या? Is it clear till here? Yes. Yes, sir. So I will bring all the x together. 8x plus 8x plus 8x, all the constant together, plus 8 plus 16 is equal to 888. 888, 24x, 86 plus 24 is equal to 888. I will again do two steps here. Any of the one you can take. But I want you to think in two different processes. Okay? रूल क्या कहता है? कांस्टेंट को एक तरफ रखो, वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ। उस रूल को फॉलो करते हुए 888 minus 24 which implies that x is equal to, ये आ गया आपका, ये 864 by 24, 24 2 12 2 4 32 2 6 2 1 6 3 2 3 7 जा 72 36. So answer is 36. x का वैल्यू अभी आया है 36, अभी काम बाकी है ना, x का वैल्यू 36 आया है। दूसरा तरीका, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है? ये दिख रहा है ना, 24 into 1 के जैसे लिख सकते हैं इसको, 24 into 1 Yes, will sir. be also be 24. So इस दोनों में 24 कॉमन है, तो अंदर क्या बचता है? इधर x plus 1 बचता है, x plus 1 बचता है, और इधर 888। याद करो थोड़ी देर पहले मैं बताया था ये टोटल पे ये मल्टीप्लाइड है और यहां तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24x plus 1. तो ये क्या, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो सकता है। सो x plus 1 is equal to 888 by 24. 888 by 24. समझ में आया? क्लियर? Yes. Yes. क्योंकि टोटल पे मल्टीप्लाइड था, मैं लेके जा सकता हूं, है ना। अब 24 3 जा 72, वो 72 के बाद आएगा ये 168। 168 मतलब ये हो गया 168 होने से 2 8 7 7 37 टाइम्स में जाएगा। सो x इज इक्वल टू, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। बोथ वेज यू कैन टेक, आइदर दिस और दिस, आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगता हो। डन ये क्वेश्चन। सो x इज 36। नाउ द नंबर्स आर 8x, मतलब 8 into 36, 8x plus 8, that is 8 into 36, how much? 8 3 is 24, 240, 24 8 6 is 48, 288, 2, this is 288, 288 plus 8 296, and 8x plus 16, 288 plus 16 304। देखो ऐड करके देखो, वेरीफाई करो, 6 4 10 8 18
Yes, sir. 8 1 9 9 9 18 3 4 5 6 7 8 आगे कि नहीं? वेरिफिकेशन हो गया कि these 3 consecutive multiples of 8 the sum is 888. अगर क्वेश्चन में बोलता है वेरीफाई तो वेरीफाई भी करके इस तरीके से हम लोग दिखाते, hence verified बोलते हैं, hence verified. And 288 296 and 304 are the required 3 consecutive multiples of 8. All right, any more question from this chapter please? And this is same you have to do with any other question. कोई बोल रहा है 5 का मल्टीपल्स, कोई बोला 7 का मल्टीपल, तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है ना. नेक्स्ट बोलो जल्दी फटाफट. Question number 10. Question 10. The number of boys and girls in a class. Ayush, do you have any question? You raised hand. Sir, that the previous phase I can understand that one. Which one? Yes, sir. This one. Sir, that 24. This into one? X. Yes, sir. Yes, sir. 24 into x plus 1. This is on the entire number ना. यहाँ पे 24 को we took common, तो 24 को यहाँ से कॉमन ले आऊंगा तो 24 into x था, यहाँ पे 24 into 1 था, तो 24 अगर कॉमन बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? x plus 1 बचेगा. Yes, sir. 24 बाहर आ गया तो x plus 1 बचा. अब ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा तो आंसर 37 आएगा. Yes, sir. x plus 1 है, प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 होने की वजह से आंसर आया 36. क्लियर? Yes, sir. सर ये वाला सर चेक करने के लिए, सर दैट वन चेक. ये नंबर्स फाइनल तो नंबर आपको निकालना है ना, आपको सिर्फ x मिला है, लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा कंप्लीट हुआ है क्या? नो. क्योंकि हम लोग 8x लिए थे, 8x plus 18 लिए थे, 8x plus 16 लिए थे, तो तीनों का भी तो आंसर निकालना है हमको. Yes, sir. Okay. 10. The number of boys and girls in a class are in a ratio. Boys and girls are in a ratio 7:5. सिंपल. इतना पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा? पहला काम वो मैं लिख दे रहा हूं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x. खत्म. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? अभी रिलेशन दिया है. पहले इतना पढ़ के तो मैं निकाल लिया, अब क्या रिलेशन दिया है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, नंबर्स के बीच में. हाँ, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन. बॉयज जो हैं इसको हमेशा इस तरीके से समझना, 8 मोर देन. 8 मोर देन मतलब ऊपर रखो एक बार नंबर को, जो भी दे रहा है. 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स बोला ना, नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स कितने हैं? 5x हैं. बॉयज कितने हैं? 7x है ना. 7x और इसके बीच में क्या रिलेशन हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8. बोला था नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. Yes, sir. What is the total class strength? The number of boys and girls in a class in a ratio. इतना दूर तक समझ में आया? Yes, sir. अब इस इक्वेशन को लेते हैं. इतना दूर समझ में आ गया तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या लिखेंगे उसका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मैं ATQ करके शॉर्ट में लिख रहा हूं. ATQ नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. सो इक्वेशन क्या होता है? सो 7x is equal to 5x plus 8, which implies that 7x minus 5x is equal to 8, which implies that 2x is equal to 8, which implies that x is equal to 4. इतना दूर तक क्लियर? अभी x आया है 4. बॉयज निकालना है, गर्ल्स निकालना है. हम लोग क्या है? नंबर ऑफ बॉयज is equal to 7x. So putting the value of x here, we'll get 7 into 4. 7 4 is 28. Number of girls is equal to 5x. 5 into 4, that is 20. ठीक है? इतना दूर तक क्लियर कि नंबर ऑफ बॉयज 28, नंबर ऑफ गर्ल्स 20. अभी है ना, वेरीफाई करना चाहेंगे तो हुआ ना कि नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, isn't it? So the total strength of the class was the question. हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखना क्या बोले. Total strength is 48. Statement ठीक से लिखना. Total strength is 48. एक मिनट.
48 और यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 या फिर इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, क्योंकि पहला वाला ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 को सॉल्व किए तो x आया ये, तो इसको इक्वेशन 2 दे दो, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देना। तो हमको पता है कि हाँ ठीक है इक्वेशन 2 फॉलो करना है। और हर बार देख रहे हो मैं इस तरीके से बॉक्स में रख रहा हूँ, आंसर्स को तुम लोग बॉक्स में रखना, आंसर्स को हमेशा, जैसे यहाँ भी नंबर ऑफ बॉयज लिख रहा हूँ ना, नंबर ऑफ बॉयज को इस तरह बॉक्स में रखूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स को बॉक्स में रखूंगा, टोटल स्टूडेंट को बॉक्स में रखूंगा, तो खटखट खटखट टीचर चेक कर पाएंगे, जानेंगे कि करेक्ट किए हो कि नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बच्चों। सर हम्म सर आप थोड़ा पहले वाला दिखा सकते हैं? लिख रहा है क्या? नो सर। नहीं लिख रहा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो यूट्यूब में वीडियो जाएगा ही। ओके चलो टाइम वेस्ट नहीं लगा और आगे बोलो, आगे का क्वेश्चन बोलो, उसमें डाउट नहीं है कुछ? नो सर, नो सर। 11 नंबर। 11 Baichung. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. हाँ बढ़िया क्वेश्चन। इतना दूर क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझ में आ गया बाइचुंग के फादर, ग्रैंडफादर और बाइचुंग ये तीनों के बीच में क्वेश्चन आने वाला है। क्यों? बाइचुंग फादर इज समथिंग बोल दिया एंड बाइचुंग ग्रैंडफादर को भी लेके आया है और बाइचुंग है ना, तो तीनों को मैं थोड़ा सा एक बार कर देता हूँ, सिस्टमेटिकली डाल देता हूँ, है ना। ऑब्वियस सा बात है बाइचुंग यहाँ होगा, मान लो बाइचुंग के फादर यहाँ होंगे और बाइचुंग के ग्रैंडफादर, एज वाइज में बोल रहा हूं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बुजुर्ग ये होंगे, उसके बाद उसके पापा होंगे, उसके बाद बाइचुंग होगा, है ना। ठीक है अब क्वेश्चन देखते हैं। बाइचुंग फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब बाइचुंग के ग्रैंडफादर से वो 26 इयर्स यंगर है, मतलब ये बाइचुंग के फादर है, बाइचुंग के फादर उनके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है। इतना दूर समझ में आया। नेक्स्ट, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से उसके फादर कितने दूर है, यहां पे मान लो बाइचुंग है, बाइचुंग से उसके फादर कितने ऊपर है, कितने एज में ऊपर है, 29 इयर्स एज में ऊपर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री, अब बाइचुंग के ग्रैंडफादर, बाइचुंग के फादर और बाइचुंग का तीनों का एज मिला देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 135 इयर्स होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। अब थोड़ा देखना, बाइचुंग का फादर का एज क्या बाइचुंग के एज पे डिपेंडेंट नहीं है? अगर बाइचुंग का एज 5 साल होगा तो उसके पापा का ये 34 इयर्स हो जाएगा, बाइचुंग 10 साल का होगा तो उसके पापा 39 हो जाएंगे, तो सारा खेल बाइचुंग के एज का है। तो लेट बाइचुंग प्रेजेंट एज बी एक्स, तो उसके फादर का एज हो जाएगा x प्लस 29 और उसके ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26। इतना दूर क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट इतना दूर क्लियर हुआ। अगर बाइचुंग x साल का है, उनसे 29 इयर्स ओल्ड उसके पापा हैं, तो उनके पापा का एज क्या होगा x प्लस 29। अब उसके पापा से 26 इयर्स ओल्ड उसके ग्रैंडफादर हैं, तो उनका एज क्या होगा x प्लस 29 प्लस 26। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नहीं। अब क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर ट्यूशन कब तक खत्म होगा, क्योंकि मेरी दीदी का अभी ट्यूशन। अगर क्लासेस है दूसरा कुछ तो यू कैन लीव, है ना, वीडियो जाएगा तो देख लेना। और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है तो क्वेश्चन बता दे, मैं कवर कर लूंगा, बता जल्दी। सर अभी तो बहुत सारा है। बोल दे क्वेश्चन जल्दी बोल, जल्दी बोल। 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16 उसके बाद सर 2.4 से है। 2.4 क्वेश्चन नंबर, जल्दी राहुल। 4 हाँ कितना? सर हाँ कितना जल्दी? 3, 4, 7, 8, 10। यू कैन लीव। इतना दूर समझ में आया सबको? बाकी बाय। बाय, वेलकम।
ये क्वेश्चन इतना दूर समझ में आया बाकियों को? तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तीनों का एज अगर ऐड कर लिया जाए, मतलब उनके ग्रैंडफादर का एज जो कि है इतना, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड होल्ड करो। अब अगर ये तीनों का एज को हम लोग ऐड करेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल ईयर एजेस विल बी 135 इयर्स, एज ऑफ ऑल थ्री। अब इसको सॉल्व करना है एक्स के लिए, एक्स 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 3x 29 plus 29 is 58, 58 plus 26 68, 78, 78 plus 6 84, 84 is equal to 135, which implies that 84 इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा इधर 1 और 5 51 51 3x is equal to 51, so x is equal to 51 by 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो बाइचुंग का एज आ गया 17, इनका एज आया 17 और ये 46, और इनका एज आया 46 और 26 40 50 60 72 72 46 17। अगर ऐड करते हैं तो देखो 2 plus 6 8 plus 7 15 5 1 7 8 8 plus 4 12 plus 1 13 135। ऑल राइट, क्वेश्चन सॉल्व हुआ 11 नंबर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 years from now, Ravi's, ये पहला चीज, Ravi's age will be 4 times his present age. His present age. What is Ravi's present age? प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज को x ले लेता है। रवि's प्रेजेंट एज इज x। 15 years from now, समझना हाँ, रवि का दो चीज, एक प्रेजेंट एज है और एक फ्यूचर एज है। प्रेजेंट एज x है, फ्यूचर एज के बारे में क्या बोल रहा है 15 years from now, x plus 15। अब सेकेंड स्टेटमेंट में एक रिलेशन दिया है उसके प्रेजेंट एज और उसके फ्यूचर एज के बीच में। रवि's एज विल बी 4 times his present age। 15 साल बाद रवि का जो एज होगा, रवि का एज क्या होगा x plus 15 15 साल बाद, दिस विल बी 4 times his present age। present age is x, so now what you have 15 is equal to, ये x इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, which implies that x is equal to 15 by 3 5। तो रवि's present age is 5। क्लियर? Yes. नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13। Yes. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, a rational number हम लोग कैसे लिखते हैं, p by q के फॉर्म में लिखते हैं। A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3, add 2 by 3 to the product, इसके प्रोडक्ट पे 2 by 3 अगर ऐड किया जाता है, you will get minus 7 by 12, minus 7 by 12। you have to solve for p and q। what is the number? करता हूं, ये वाला बताता हूं। 5 by 2, 5p by 2q is equal to 2 by 3 ऐड हुआ है तो इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, minus 7 by 12 minus 2 by 3। 5 by 2 p by q रहने दो एक बार ना, इस दोनों का एलसीएम आएगा 12
-7 -8, 3 4 से 12 होता है तो -8, ये हो गया -15/12। अब ये इधर मल्टीप्लाइड हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, p/q रहा -15/12 डिवाइडेड बाय 5/2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, p/q इज इक्वल टू -15/12 इंटू 2/5, 5 कैंसल आउट, 3 2 6 3 1 2 -1/2. The rational number is -1/2. Okay, hence the rational number is -1/2. Clear? Yes. Number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10. उसके पास करेंसीज क्या क्या है, रश्मि के पास ₹100 का है, ₹50 का है, ₹10 का डिनोमिनेशन का करेंसी है। ठीक है, अब क्या क्या बता रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज आर 2:3:5। रेशियो दिया है, मतलब मैं क्या ले लूंगा, लेट शी हैज 2x रुपीज नोट्स, 100 रुपीज का 2x नोट्स है, इसका 3x नोट्स है, इसका 5x नोट्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों नोट का रेशियो है 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी, टोटल कैश कितना है, टोटल कैश इज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, ये निकालना, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स कितना है, 100 रुपीज का इतना नोट है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 रुपीज कितना होगा, मतलब कोई बोले कि तुम्हारे पास 20 नोट है 100 रुपीज का, तो क्या करते, कितना रुपया हुआ तुम्हारे पास, तो 20 × 100 करते, तो ये आ गया टोटल 100 रुपीज का कितना हो गया वैल्यू, 50 रुपीज का टोटल वैल्यू, 10 रुपीज का टोटल वैल्यू। इतना क्लियर हो गया। अब ये Yes, टोटल को ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल रुपया मिल जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू इतना, which implies that 400x is equal to इतना। अभी ये 400 इस टोटल में मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 400 टोटल है, तुम दोनों काम कर सकते हो, इसको इधर डिवाइड कर दो अगर कंफ्यूजन लगता है ना, तो 400,000 बाय 400, 0000 कट गया, 41000 आ गया, x आ गया 1000। तो टोटल 200 रुपीज का नोट कितना है, 2 × 1000, 2000 नोट्स है, 2000 नोट्स है। 50 रुपीज का कितना नोट्स है, 3 × 1000, 3000 नोट्स है। 10 रुपीज का कितना नोट्स है, 5 × 1000, 5000 नोट्स है ना। वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे अगर, तो ये टोटल हो गया 50,000 रुपीज, ये टोटल हो गया 1,50,000 और ये टोटल हो गया 2 लाख रुपीज। कितना, 2,00,000,003, ये 2 लाख रुपीज, ये 1.5 लाख रुपीज, ये 50,000 रुपीज, सबको मिला देने से 4 लाख रुपया हो जाता है। वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट, क्लियर है ये वाला, समझ में आया? Yes. नेक्स्ट 15, आई हैव टोटल ₹300 इन कॉइन्स। टोटल रुपीज कितना है, 300 है, उसमें ऑफ कॉइन डिनोमिनेशन क्या क्या है, ₹1 का कुछ है, ₹2 का कुछ है, एंड ₹5, सम ₹5। क्वेश्चन है बोला इन सम ₹5। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर 5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी? The number of 2 coins, ₹2 coins is 3 times the number of 5 rupees coins. अब खाली इस दोनों के बीच में रिलेशन दिया है। The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? The number of 2 rupees coins, number of 2 rupees coins is
3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स और टोटल निकालने बोल रहा है। तो इसमें एक तो ये है, बहुत सारा चीज अननोन है, लेकिन इजी होगा, कैसे निकाला जा सकता है। कि अगर ₹1 कॉइन एक्स है, अगर ₹1 कॉइन एक्स है, तो ₹5 कॉइन कितना होगा? नहीं, हम लोग ₹5 कॉइन को एक्स लेते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ₹5 कॉइन एक्स है, तो ₹2 कॉइन कितना हो गया? यहां बनाता हूँ, ₹1, ₹2 और ₹5। ₹5 कॉइन अगर एक्स है, तो ₹2 कॉइन कितना होगा? ₹2 कॉइन 3x होगा, क्योंकि बोल रहा है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो ₹1 कॉइन कितना होगा? क्वेश्चन में टोटल कॉइन दिया है 160, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो 160 से अगर इस दोनों को माइनस कर दूंगा, 160 माइनस 3x कॉइन्स एंड x कॉइन्स, मतलब 160 माइनस 4x, ये अगर कर दूंगा तो हो जाएगा। यस सर। Isn't it? कि अगर ₹X कॉइन, अब ₹5 कॉइन x है, ₹2 कॉइन इतना है, तो ₹1 कॉइन कितना होगा? ₹1 कॉइन सर इतना हो जाएगा। इतना दूर क्लियर है? यस सर। sir. टोटल रुपीस दे दिया है, टोटल रुपीस दे दिया है, मतलब ₹300 वैल्यू दे दिया है। वैल्यू कैसे निकलता है? रुपीस का डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये आ गया 5x प्लस डिनोमिनेशन इनटू उसका नंबर ऑफ कॉइन्स 6x प्लस डिनोमिनेशन इनटू उसका नंबर ऑफ कॉइन्स, डिनोमिनेशन 1 इनटू 160 माइनस 4x, इतना ही। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हो गया 11x, ओपन करेंगे तो 1 इंटू माइनस 1 इंटू 160 रहेगा, और 1 इंटू माइनस 4x हो जाएगा। 11x माइनस 4x कितना होगा? 7x। ये 7x इधर रहा, 160 इधर एडेड है, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 160 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा, बचेगा 140, ये बचेगा 140। मैं डिटेल में स्टेप नहीं जा रहा हूं। 11x माइनस 4x बचेगा 7x। 7x के बाद वाला स्टेप, 7x इक्वल टू 140, 7x के बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 140 बाय 7, दैट इज इक्वल टू 20। सो x इज 20। तो नंबर ₹5 का कॉइन कितना है? 20 है। ये कितना है? 20 इंटू 3 60 है। तो ये कितना होगा? 180 टोटल था, 160 टोटल था, 60 20 80 चला गया, ये बचेगा 80। तो ₹1 का कॉइन 80 होगा। आप करके भी देख सकते हैं। 5 इंटू 20 100, 2 इंटू 60 120 प्लस 80, कितना रुपीज आया? टोटल ₹300 आया। All right, so this question is done. Question number 16 also doubt. यस। The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100. The winner will get ₹100। मैं कल ऐसे लिख रहा हूँ हाँ सारा। And the participant who does not win a prize gets 25। कंसोलिडेशन प्राइस जो है, कंसोलेशन प्राइस पार्टिसिपेशन प्राइस जो है, दैट इज ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाज ₹3000। टोटल प्राइज मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना है? 63। अच्छा क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, उसमें कुछ विनर्स होंगे, उसमें कुछ विनर्स नहीं होंगे। अगर मान लो मैं विनर्स को x लेता हूं, तो कंसोलेशन प्राइस जीतने वाले कितने होंगे? 63 माइनस x होंगे। मतलब अगर 10 लोग जीतेंगे तो कितने बच गए? 53 लोग हारे होंगे, ये बोल रहा है।
अब क्या बोल रहा है, जितने जीते होंगे, मतलब मान लो x जीते हैं, तो हारे कितना है, 63 माइनस एक्स वाले हारे होंगे। टोटल जीतने वाले को कितना पैसा दिया गया होगा, जितने लोग जीते हैं, these are the number of winners into value to each winner, price to each winner, तो 100 into x 100x। यहाँ पे क्या होगा, सेम 25 into 63 माइनस एक्स, और ये दोनों को मिला के टोटल प्राइस में 3000 रुपया बांटा गया है। ये दोनों को मिला के प्राइस में ₹3000 बांटा गया है। तो करते हैं इक्वेशन, 100x विनर्स को बांटा गया, 25 63 माइनस एक्स बांटा गया जो लोग नहीं जीत पाए हैं, और टोटल पैसा हो गया 3000 रुपीज। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको 25 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 25 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। मेरे को थोड़ा लंबा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ दिख रहा है टोटल पे 25 मल्टीप्लाइड है, और ये भी 25 का एक तो मल्टीपल है। ये 25 इंटू 4x लिखने से चलेगा, और ये 25 इंटू 63 माइनस एक्स लिखने से चलेगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस बार। तो मैं दोनों में से 25 को कॉमन ले आया, अंदर बचा 4x प्लस 63 minus x is equal to 3000, which implies that 4x plus 63 minus x plus into plus 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 into minus minus, ठीक है। is equal to 3000 बाय 25, इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 25 1 जा 25, 50, 25 2 जा 50, 120, और ये हो गया 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 63। ये इधर सब एडेड है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये बचा 7 और 7 होने 11 6 5 57 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 9 जा 27। सो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 19। अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, विनर हुए 19, क्योंकि विनर को हम लोग लिए थे x, तो विनर्स हुए 19 क्योंकि ये x है। तो टोटल जो नॉन विनर्स थे वो कितने होंगे, 63 माइनस 19, 63 माइनस 19 कितना हो गया, 44 वेयर द नॉन विनर्स। आया समझ में, क्लियर। विनर 19 और नॉन विनर्स 44। एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चंस लगभग खत्म हो गया। 2.3 कोई डाउट है किसी का? हेलो, नो, नहीं। 2.3 कोई डाउट नहीं है। आयुष, Yes, sir. 2.3 कोई डाउट है? No, sir. 2.4 चलता है। 2.4 एक्सरसाइज 3 4 7 8 10। और कोई डाउट है क्या इसके अलावा? हेलो हाँ सर, वन डाउट है सर 2.3 से। और नेक्स्ट 2.3 से वन डाउट है सर नंबर 1 नहीं सर, तो नंबर 7। नंबर 7 डाउट है। 2.3 का क्वेश्चन 7। Solve the following equation and check your results. Solve and check. X is equal to 4 by 5 x plus 10. 4 by 5 x plus 40 by 5। 4 by 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 by 5 इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया x minus 4 by 5x is equal to 8, which implies that LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 5x minus 4x by 5 is equal to 8, which implies that x 5x minus 4x is x, 5 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 40, x is equal to 40। इसी सेम क्वेश्चन को मैं और एक मेथड से करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हायर लेवल है, लेकिन हम लोग को धीरे धीरे समझना है, हायर जाना है ना,
4/5 x + 10। अभी देखो ये टोटल पे मल्टीप्लाइड है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इधर x है मेरे पास, यस क्योंकि इसके नीचे बाय डिफॉल्ट 1 है ना, तो 5 × 1 नीचे 5 हो सकता है, और ऊपर ऐसे लिख सकता हूं। अभी 5 इधर डिवाइडेड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 5x हो गया। और ये वाला मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन कर सकता हूं, 4 × x 4x, 4 × 10 + 40, 5x - 4x, x = 40। ये भी किया जा सकता है। बहुत सारे स्टेप्स बच गए, समझ में आया? यस 1 मिनट। सर, हम सर साइड में सर ब्रैकेट में सर लिखेंगे भी ना सर कि सर नो सर, किया है कि नहीं? ये सर किया हूँ। एक्सरसाइज 2.4 नो 2.4 सर, नो सर किया हूँ, नो सर किया हूँ। 2.4 1 3 4 7 8 10 I guess 2.4 will keep it for next class, otherwise 2.4 and we'll keep it for the next class 2.4. Okay, Okay sir. complete 2.4. After doing 2.4, if there is doubt, we'll do it in a doubt clearing session. Okay All right, sir. Yes sir. chalo, bye, take care.